Hello everyone, welcome to Gyanput Academy. I am Madhulika. Today's topic is regarding your Sahitya Academy Award, and this article is from the Hindu. And today is your Saturday, 23rd December. So we'll be looking at the introduction to the topic. We will also be seeing through the important vocabulary and words. And before I jump into the discussion of the topic, I would like to give you a brief introduction to the topic. So, this is talking about your Sahitya Academy Award, which is honoring writers who have been writing novels, books, stories from various language. So, the 24 Indian languages have been chosen. Different kind of poems, novels, short stories. Writers have been, and those books have been awarded and nominated by the government. So we'll also be see that how is this important, this award is important, when it was established, then what are the challenges basically this award is bringing, or the changes we need to do in this field. So we'll be taking up everything, but before that, I would like you all to look into the vocabulary section and the meanings. Here you can see there is a meaning, there's a word called porous. So it means that allowing the passage of substances through pores or small openings. In this context, it suggests the literary borders should allow for fluidity and openings. Next is your academy. It is referring to the Sahitya Academy Award, which is the National um, Academy of Letters in India. So this is its meaning. Then we will also be seeing the word linguistic diversity, means it is related to language. So it is the variety of language spoken in a particular area. In this context, we are taking in this newspaper, it is acknowledging to the diverse linguistic landscapes of India. Then is the word marginalized. We have all heard about this marginalized section of society, marginalized people. So उसका मतलब क्या है? It is pushed to the outskirts of margins of society, often refers to communities or groups facing social exclusion, जो को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जो पीपल लोग को, या वो लोग थोड़े बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं. Next, extinction. Extinction means the state of a language disappearing or ceasing to be spoken over time. मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या फिर कम होते जाना किसी चीज़ का is called extinction. PR frenzy. What is PR frenzy? It is a public relation excitement or buzz. In this context, highlights the fact that not everyone has the ability to generate widespread attention for their work. Next is your word woefully. Woefully मतलब क्या होता है? In such a manner that is full of sorrow or lament. Here it is used to emphasize the lackluster promotion of Sahitya Academy Award. Then is your word pen, pinnacle. Pinnacle means क्या होता है? The highest point or culmination, in this context referring to the award as the pinnacle of recognition. Next is your abysmal. Abysmal means extremely bad or a very low quality. Here it is referring to the poor social media presence of Sahitya Academy Award, which is why this award does not have much of recognition and appreciation. Then is your bristling. Bristling mean क्या होता है? Showing irritation or anger. In this context, it is suggesting that the Academy's website is filled with grammatical errors. वो हो गया bristling. So here is also some multiple choice question we will look at, or you can personally look at the end of the newspaper discussion. This will be helpful for your pre, but this is your long answer question, which is very important for your mains, and questions are asked in this format, so you must go through this after reading the article. So let us now look at the article. Award for Words, one of the Sahitya Academy Awards. द साहित्य अकादमी मस्ट डू मोर टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर. सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये एक अवार्ड है जो वर्ड्स यानी लैंग्वेजेस या ऐसे चीज़ों, ऐसे पोएम्स राइटिंग्स के द्वारा राइटर्स को मिलता है जो वर्ड्स या लिटरेचर या लैंग्वेज या डिफरेंट बुक से डील करते हैं. इसके अलावा इसमें ये भी लिखा जा रहा है कि अकादमी को और कुछ करना चाहिए और
हाई लेवल पे इसको आना चाहिए लार्ज स्केल में, ताकि ये इंडियन लैंग्वेज या इंडियन लिटरेचर को प्रमोट कर सके, जिसमें आपका किताब लिखा जाए, पोएम्स लिखा जाए या बाकी सब मैगजीन लिखा जाए एंड ऑल ऑफ दैट. Literary borders should be porous, and the Sahitya Academy Award, which have been honoring writers of 24 Indian languages down the years, should be seen in that light. So इसमें क्या बोला जा रहा है? लिटरेरी बॉर्डर्स शुड बी पोरवस, मतलब और ओपननेस होना चाहिए. किसको लेकर? लिटरेरी बॉर्डर्स को लेकर, मतलब जो लैंग्वेज हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेज है उनको वैल्यू मिलना चाहिए, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या फिर उसको उतना वैल्यू नहीं मिलता है. तो ये अवार्ड जो है साहित्य अकादमी अवार्ड, इट हैज़ बीन ऑनरिंग, मतलब ये ऑनर किया या पुरस्कार प्रेजेंट किया कौन? राइटर्स को जो 24 इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स लिखे इस साल. ये 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स आया, उस लोग को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से. और इससे क्या हुआ? ऐसे राइटर्स, ऐसे बुक्स लाइमलाइट में और आ गए और उनको पब्लिसिटी मिला या फिर ऑडियंस मिला एंड ऑल ऑफ दैट. This year, the Academy has picked 9 books of poem, 6 novels, 5 short stories, 3 essays, and one literary study in Dogri, Rajasthan, Kashmiri, Manipur, Odia, Punjabi, Rajasthani, Sanskrit, Sindhi, Assami, Bodo, Bengali, Telugu, Malayalam, Kannada, Santhali and other. तो इस साल, इस ईयर क्या हुआ? इस 2023 में, इस ईयर ये जो ये अवार्ड कितना 9 बुक्स ऑफ पोएम को मिला अवार्ड, 6 नॉवेल्स को भी अवार्ड दिया गया, 5 शॉर्ट स्टोरी और 3 ऐसे को, जो वेरियस लैंग्वेजेस में लिखा गया. इतने सारे लैंग्वेज को सम्मानित किया गया, चाहे वो गुजराती हो, कन्नड़ हो, कश्मीरी हो, सारे लैंग्वेजेस को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से. और इस अवार्ड से ये सब लैंग्वेजेस का, ये सब बुक्स का महत्व भी बढ़ता है. Next, it is a prize to be welcomed just for the sheer linguistic diversity it acknowledges in a country where there is a change in dialect every few square kilometers and no dearth of marginalized community or language facing extension. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो अवार्ड है, ये साहित्य अकादमी अवार्ड, इट वेलकम्स, मतलब ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है या ऐसी चीज़ों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो दिखाता है कि हमारे देश में कितना डाइवर्सिटी है. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का कितना डाइवर्सिटी है. ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करता है या सम्मानित करता है हमारे देश में, और इस तरह से एक चेंज भी लाता है हमारे देश को. जिस तरह से पुरस्कार डिफरेंट लैंग्वेज को प्रमोट करता है, डिफरेंट स्टोरी या राइटिंग स्किल्स को प्रमोट करता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी देखा जाता है कि हर हर 2 कदम के बाद, एवरी स्क्वायर किलोमीटर्स, हम लोग देखते हैं पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट आउटलुक, इतना सारा हमारे देश में डाइवर्सिटी है. प्लस जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो उतने जो बैकवर्ड है या फिर बोल सकते हैं उतना उनका ग्रोथ नहीं हुआ है, प्लस जो लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर उसका महत्व कम होते जा रहा है, उसको भी ये अवार्ड सम्मानित करता दिखाई देता है. The possibilities are immense in a country where not everyone has the ability to wipe up a PR frenzy. A Sahitya Academy Award is encouragement to keep pursuing the craft. Writers can expect to see a rise in sales and be taught in schools and university, and the readers can hope to discover some hidden gem. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? हमारे जैसे कंट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत डाइवर्स है, पॉसिबिलिटी बहुत इमेंस है कि सब लोग लिख सके या फिर एक्सप्रेस कर सके, पर सबके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि सब लोग अपने आप को इस फील्ड में ला के प्रेजेंट कर सके, चाहे वो राइटिंग के फील्ड में हो या ऐसे अवार्ड से सम्मानित हो पाए. लेकिन ये अवार्ड इनकरेज करता है, यानी प्रमोट करता है. कैसे? राइटर्स को प्रमोट करता है, ताकि ये अवार्ड जब जिस राइटर्स को मिल जाता है या उनके बुक्स को मिल जाता है, तो क्या होता है, उनका सेल्स में बढ़ावा हो जाता है. शायद उनको स्कूल्स में पढ़ाने का परमिशन मिल जाए, वो सब नॉवेल्स या बुक्स को यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट किया जाए. और जो रीडर्स होते हैं, शायद उनको भी इसमें कुछ हिडन मैसेज, हिडन जेम या ये सब बुक पता चलता है कि बहुत हेल्पफुल है या फिर बहुत इंटरेस्टिंग है. Next, writers also have the opportunity to be translated in other regional language and into English too. Neelu Saran, Neelam Saran Gore, who has won this year for her English novel Requiem of Raja of Rag Janki, which has been bagged the Hindu Fiction Prize in 2018, can look forward to her story. I'm sorry. Yeah. So look, story
being translated into other इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसमें बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, अवार्ड जब मिलेगा तो राइटर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उनका अगर मान लीजिए किसी को ये अवार्ड मिला तो वो उनका बुक प्रसिद्ध हो गया, तो अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ का मिलेगा कि जो बुक प्रसिद्ध हो रहा है वो अलग लैंग्वेजेस में भी आएगा, ताकि जो अदर लैंग्वेज के लोग हैं उसको वो हिडन जेम को एक्सप्लोर कर सके। अदर रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नीलम नाम की व्यक्ति हैं, राइटर है, तो उन्होंने एक किताब लिखा था, इंग्लिश नॉवल, जिसका नाम है राग जानकी, डिक्लिम इन जानकी, मतलब राज जानकी की कहानी। तो उसमें क्या उन्होंने लिखा है, इनको सम्मानित किया गया था 2018 में हिंदू फिक्शन प्राइज़ के द्वारा। और इससे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि इनका स्टोरी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो पाए। नेक्स्ट, here it is reading, however it is pity that Sahitya Academy Award, the first conferred in 1955, do not have top of the mind recall such as Booker Prize or the Pulitzer. The National Academy of Letters was established in 1954, and its stated goal was to be the central institution for literary dialogue, publication, and promotion in the country, and the only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages, including English. तो इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, ये अवार्ड जो है ये 1955 से चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये आज तक इतना टॉप वैल्यूएबल अवार्ड नहीं हुआ है जैसे कि बुकर प्राइज़ हुआ है या द पुलिट्ज़र हुआ है। तो आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि कोई बुक फेमस क्यों हो गया, क्योंकि उसको बुकर प्राइज़ मिला, या उसका क्यों लोग उसको जानने लगे, खरीदने लगे, क्योंकि उनको बुकर प्राइज़ जैसा अहम या फिर बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला अवार्ड मिला। लेकिन ये साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ नहीं है। ये इतना समय से चल रहा है पर इस इतना टॉप प्राइज़ नहीं हुआ है कि कोई इसका नाम सुन के बुक खरीद ले कि हाँ चलिए इस बुक को ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो वी शुड बाय इट। इट इज़ नॉट रिगार्डिंग दैट। तो इसका वैल्यू इतना कम बताया गया है। इसके अलावा तो नेशनल अकादमी ऑफ लेटर है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। उसका गोल था दैट this it is the goal for the central institution for literary dialogue, publication, promotion in the country। कितना लैंग्वेज में, 24 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश में। To that end, the Sahitya Academy does not hold lectures, readings, discussions, exchange programs, and workshops including all communities, but it is so woefully promoted that few get to know about the program। तो देखिए क्यों ये इतना इतना पहले से चल रही है अवार्ड 1955 से, फिर भी ये टॉप लेवल ऑफ अवार्ड नहीं बना कि लोग इसके बारे समझ के खरीद ले आपका बुक, या फिर लोग उसको इतना महत्व दे कि ऐसे अवार्ड मिलने वाले बुक बहुत चल जाए। क्यों उसका चैलेंजेस यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो अवार्ड है ये इसमें क्या होता है, इट डज़ नॉट होल्ड लेक्चर्स, रीडिंग, डिस्कशन, एक्सचेंज प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स। इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में इस अवार्ड को लेकर। इसका प्रोग्राम्स जो चलता है वो भी बहुत प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रमोट किया जाए अवार्ड, या बुक्स भी प्रमोट हो सके। Though the Sahitya Academy Award is pinnacle, there are other awards such as Bal Sahitya Award, the Yuva Puraskar, and the Bhasha Samman or the Translation Prize. But not enough is being done to promote its activities. The Academy's website is not updated and its publishing with grammatical errors. Its social media presence is abysmal. तो और क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस अवार्ड में? इस अवार्ड जैसे ही कोई कोई अवार्ड्स है, फॉर एग्जांपल यो बाल साहित्य अवार्ड, युवा पुरस्कार अवार्ड, भाषा सम्मान, ये सब अवार्ड्स क्या है, इसका ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया सब अवार्ड, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस अवार्ड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि इसके अवार्ड्स, फॉर एग्जांपल ये अकादमी अवार्ड है, उसके वेबसाइट अपडेट नहीं है, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है बुक्स को लेकर या फिर उसके वर्डिंग्स को लेकर, प्लस मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है रिगार्डिंग दिस अवार्ड्स या उनका प्रमोशन को लेकर, जिसके वजह से अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा रहे। लास्ट, it is brought out of thousands of books, but the fact that it is that the publication through, though affordable, are to come at come by hard to come by at the time when children particularly are glued to screen and losing their reading habits. The Sahitya Academy with its extensive network should not
should do more to spread the words about India's rich literary tradition. तो इसमें एक सजेशन दिया जा रहा है कि आज के चिल्ड्रन जिनका रीडिंग हैबिट्स छूट गया है, वैसे में ऐसे अवार्ड्स को और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, अपना ग्रामेटिकल एरर को सुधारना चाहिए, मीडिया का प्रेजेंस लाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया का जो रिच लिटरेरी या डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो प्रमोट हो सके और लोगों का हर रोज का उसमें रीच हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली ये मेंस वाला टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग से ही है आपका। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।